If is there any difficulty, please let me know. So accordingly, we can change the things scenario. Okay. So let's go to the chemical bonding. As we have seen, this is a very fundamental chapter for all the competitive examinations, as like JEE, NEET, and whatever the competitive examinations we are going to appear. This topic is of very immense importance, and this chapter is very conceptual and even easy to. What we have seen here in this chapter, chemical बॉन्डिंग के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी टू एटम के बीच में जो बॉन्ड तैयार होता है वो बॉन्ड किस तरीके से बनता है, किस कारण से बनता है और उसके क्या परिणाम होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. मेनली बॉन्ड किस तरीके से तैयार होता है, हाउ बॉन्ड इज फॉर्म, यही मेन क्वेश्चन है जिसका आंसर इस चैप्टर के अंदर ढूंढा जाता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर. हमने ये देखा केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स two or more atoms together in a molecule of compound is called as a chemical bond. और how this bond is formed, ये bond किस तरीके से बनता है, इसके बारे में 4 to 5 theories अलग अलग तरीके से आंसर देते हैं. उसमें से पहला theory हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉनिक theory of valency, जिसका बेस्ट आउटकम था octet rule. So that means we have seen the octet rule. Also we have seen types of bond based on the octet rule, that is ionic bond and covalent bond, and the formation of different molecules, that is hydrogen molecule, oxygen molecules and so onwards, sodium chloride, calcium chloride वगैरह ये सारे molecules हमने उसके अंदर देख लिया. जैसे थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, आगे उसके अंदर हमने ये देखा that is what are the limitations of this octet rule. Though octet rule has given a very nice explanation for the formation of different molecules, that is the bond formation, it has some certain demerits, disadvantages, and what are these, that's what we have discussed here this chapter. ये भी हमने उसके अंदर डिस्कस कर दिया. फिर हमने ये देखा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी के अंदर ही हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी इटसेल्फ इज पुट फॉर द लेविस एंड कौशल नेम साइंटिस्ट, उसमें से लेविस ने डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से डिजाइन करते हैं उसके रूल्स भी देखे, वो स्ट्रक्चर भी हमें देखे. उसके बाद व्हेन वी हैव डिस्कस द लिमिटेशंस, वी हैव प्रोसीड अहेड, बिकॉज़ ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन के अंदर ये भी बात आती है कि स्टेबिलिटी, एनर्जी, रिएक्टिविटी एंड खास करके ज्योमेट्री के बारे में ऑक्टेट रूल और लेविस थ्योरी ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं दे पाता है. और इसीलिए सिडविक और पावेल नेम साइंटिस्ट द्वारा जो रखी गई थ्योरी है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी, कल के लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे. According to valence cell electron pair repulsion theory, valence electrons are added and they are distributed in a such a way that to form a single or multiple bonds, and every atom completes the octets. And the geometry is formed accordingly because of the repulsion of electrons. इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर जो रिपल्शन होते हैं उस रिपल्शन के कारण एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनती है हर एक मॉलिक्यूल की, हर एक सब्सटेंस की, और उसी के बारे में हमने उसके अंदर डिस्कस कर दिया. जो हमारा वो टॉपिक था वो हमने उसके अंदर डिस्कस कर दिया. जैसे थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, कल हमने स्टार्ट किया था टॉपिक, दैट इज सेकंड और थर्ड थ्योरी व्हिच ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन हाउ बॉन्ड इज फॉर्med, इज नथिंग बट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सो यस्टरडे वी हैव जस्ट रिटन द हेडिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. Valence bond theory known as VBT, which is put for the Hitler and London scientists. Valence bond theory is one of the advanced theory which try to answer the question how bond is formed. Bond किस तरीके से तैयार होता है उसके बारे में आंसर देने वाली ये theory है, that is called the valence bond theory. So let's move to this postulates of this valence bond theory. We have postulates, also called as assumptions. Okay, in some books it is called as postulates, or some books it's called as assumptions. There are some certain assumptions of this valence bond theory. Valence bond theory कुछ अपने assumptions है, कुछ points है, कुछ rules है, कुछ statements है, that's you can say simply postulates. तो ये postulates हमें समझने हैं, learn करने हैं, because that is nothing but the valence bond theory. And so once onwards हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर किस तरीके से मॉलिक्यूल बनते हैं हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर एंटरिंग इनटू दैट वी नीड टू हैव द क्लैरिटी ऑफ द क्वेश्चन, जो मैंने कल आपको ऑलरेडी किया था. खास करके वी शुड बी क्लियर विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इज अ फंडामेंटल पार्ट. सो वी हैव दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमारे पास कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, इट इज 1s2 2s2
2p6. This is the electronic configuration of carbon. अभी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, सबसेल्स एंड ऑर्बिटल्स। किसी भी एटम के अंदर शेल्स है, शेल्स के अंदर सबसेल्स है और सबसेल्स के अंदर ऑर्बिटल है। फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम के चैप्टर में हमने डिस्कस किया हुआ है, अलग अलग थ्योरी आए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल था, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, बोर्स एटॉमिक मॉडल था, और सबसे लास्ट में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो क्वांटम नंबर्स देता है, और जो क्वांटम नंबर्स है वही कहते हैं कि एटम्स के अराउंड में शेल्स है, शेल्स के अंदर सबसेल्स है और सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, जिसके अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो शेल्स आर डिनोटेड बाय n is equal to 1 2 3 4 onwards, subcells are denoted as s p d f, and orbitals are either 1s then 2px 2py 2pz like that, 2px py pz like that, इस तरीके से होते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो जैसे कि हमने देखा कि दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 6। कार्बन 6 के अंदर जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर का सेल है, 1s नंबर का सबसेल है, सेकंड नंबर का सेल है 2s और 2p उसके अंदर के सबसेल्स है। और उसे अगर बारीकी से देखते हैं हम लोग तो 1s इज बॉक्स डायग्राम इस तरीके से दिखाया जाता है, दिस इज 1s, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। ये है 2s इलेक्ट्रॉन, तो ये 2s के अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स है 1 अप 1 डाउन, और p के अंदर 3 होते हैं, सो दिस इज यू कैन से px py, सो ये 2p है, so this becomes 2px, this becomes 2py, this becomes 2pz। 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होते हैं, आई एम सॉरी। ओके, सो नाउ दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ओके, हाइड्रोजन का लिख सकते हैं, नाइट्रोजन का लिख सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं। तो आप देखिएगा 1s, 1 is a cell, s is a subcell, and 1s is a orbital। 2s सेकंड सेल, s नाम का सबसेल और 2s नाम का ऑर्बिटल है। यहाँ पे ये p नाम का सबसेल है, दैट इज 2p है, हमने देखा दिस इज 2p, तो ये तीनों भी 2p के ऑर्बिटल्स है। सेकंड सेल के अंदर s एंड p सबसेल्स है, और p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स है। तो याद रखिएगा कि p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स है, पहले का नाम है px, दूसरे का py, तीसरे का pz। कारण है दिस ऑर्बिटल लाई ऑन x एक्सिस, दिस ऑर्बिटल लाई ऑन y एक्सिस, दिस ऑर्बिटल लाई ऑन z एक्सिस, और इसलिए ये सेकंड सेल के अंदर का px है, सेकंड सेल के अंदर py है, सेकंड सेल के अंदर का pz ऑर्बिटल, और एनी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हैविंग अपोजिट स्पिन, एक होता है क्लॉकवाइज रोटेट, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। हमें से सारे बच्चे जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा है कि इलेक्ट्रॉन व्हाइल रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जैसा हमारा अर्थ revolving around the sun revolves around its own axis, and that's why we have day and night as well as we have the year, है ना। 1 ईयर क्या होता है, तो अर्थ अराउंड सन के अराउंड में एक पूरा चक्कर काटती है, कंप्लीट करती है, और अर्थ जब खुद के एक्सिस के अराउंड में एक चक्कर काटती है तो उसे 24 घंटे लगते हैं। सो दैट्स व्हाई 24 घंटे आते हैं, और इसलिए वो पूरा एक ईयर भी आता है। सो ये कालगणना उसके आधार पर है। उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं अराउंड द ओन एक्सिस एंड अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब electrons revolves around its own axis, at the same time it revolves around the nucleus. So electron has 2 spins, एक clockwise और एक anti-clockwise. So this upper is clockwise and downward is anti-clockwise rotation we can see here. So this is what is the opposite spins of electron. One electron has clockwise spin, another electron has anti-clockwise spin. So these are happens. यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये clockwise में होगा, ये clockwise में होगा, या फिर इधर दोनों anti-clockwise होंगे, but ये अलग-अलग ऑर्बिटल में है। 2 p नाम के सबसेल में है इलेक्ट्रॉन, सेकंड नाम के सेल के p सबसेल में, बट ये इलेक्ट्रॉन अलग ऑर्बिटल में, अलग ऑर्बिटल में है। सो दैट्स व्हाई दे हैव अ सिंगल स्पिन, आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से एक ही होता है। एंड इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो अभी इसके अंदर 2 है, इट इज कॉल्ड फुलफिल्ड, इसके अंदर 2 है, ये फुलफिल्ड है। इसके अंदर 2 होने चाहिए थे, लेकिन है एक ही, यहाँ पे 2 होने चाहिए, है एक ही, यहाँ पे 2 होनी चाहिए, है 0, क्योंकि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस तरीके से भरते आते हैं, हमने देखा है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भर के आते हैं। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन होता तो शायद इधर आता था, और होता तो पेयरिंग शुरू हो जाता था, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाते। सो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, हियर यू कैन से हियर, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज हाफ फिल्ड ऑर्बिट।
2px is an orbital and which has only one electron. It occupies maximum 2 electrons, but it has one electron. That's why it's called a half-fill orbital. This is called a half-fill orbital, or this is called an empty orbital. This is called a full-fill orbital. So याद रखिएगा, it's very important. This orbital is full-fill orbital. Full-fill orbital. This is called as a half-fill orbital. And this is called as an empty orbital. Empty orbital. तीन टाइप के ऑर्बिटल हो सकते हैं. Full-fill orbital, दोनों full-fill orbital है. ये दोनों half-fill orbital है, empty orbital. So orbital has no electrons, empty orbital. Orbital has only one electron, half-filled orbital, or orbital has two electrons, is called a full-fill orbital. उससे ज़्यादा होती नहीं, क्योंकि orbital की capacity maximum 2 होती है. So in order to get the postulates of valence bond theory, you should be clear about these concepts. What is orbital? What is half-filled orbital? What is partially filled? Yeah, that is also called, you can say, half-filled, or what is empty orbital. So get clear with this concept. This is the part of electronic configuration. Hope everyone understood this one. Electronic configuration is distribution of electrons in cells, subcells and orbitals. एटम के अराउंड में जो शेल्स होते हैं, सबसेल्स होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाते हैं, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको ये पिक्चर दिखाता है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स है, 2px, 2py ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है, और 2pz ये एम्प्टी ऑर्बिटल आपको इसके अंदर मिलता है. और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही बेस्ड है. खास कर ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोस्टुलेट्स के अंदर. ठीक है, तो अभी आगे पोस्टुलेट्स के अंदर. पोस्टुलेट नंबर 1 अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पहला जो उसका पोस्टुलेट ये है, a chemical bond is formed between the two atoms by overlapping of half-filled atomic orbitals. overlapping of half-filled atomic orbital इस तरीके से. अभी देखिए, इस तरीके से आएगा तो टक्कर हो जाएगा, इस तरीके से आएगा टक्कर हो जाएगा, ये इस तरीके से आएगा तो ओवरलैप, इस तरीके से आएगा तो ओवरलैपिंग. दिस इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग. सो दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, half-filled atomic orbitals overlap. So bond is formed by overlapping of half-filled atomic orbitals. ये इंपॉर्टेंट है. half-filled orbitals. दो एटम जब इकट्ठा आते हैं, जैसे कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ आता है ना, जैसे हम ये देखते हैं कि one hydrogen reacts with another hydrogen to form H2, ये मॉलिक्यूल तैयार होता है. तो इसका कहना ये है, इस हाइड्रोजन के एटम का half-filled atomic orbital इस हाइड्रोजन के half-filled atomic orbital के साथ ओवरलैप होता है. एक एटम का half-filled atomic orbital दूसरे एटम के half-filled atomic orbital के साथ ओवरलैप होता है. तो इस एटम का half-filled atomic orbital इस एटम के half-filled atomic orbital के साथ ओवरलैप होता है. ओवरलैप इज लाइक दिस प्रोसेस. देखेंगे आगे आप और अच्छी तरह समझने का. ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स बाय overlapping of half-filled atomic orbitals of two different atoms. मतलब overlapping of half-filled atomic orbitals of two different atoms, necessarily different atoms. ये इसके अंदर क्या आता है. Then overlapping atomic orbitals must have opposite spins of electron. Opposite spins of electrons. इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रहा है और इसका अगर एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व हो रहा है, तभी जाके इसके अंदर बॉन्ड फॉर्म होने की चांसेस है, ओवरलैपिंग की चांसेस है. ये भी अगर क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है तो इनके बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं. ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तभी जाके ओवरलैपिंग पॉसिबल है. तो ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. अपोजिट स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मस्ट. अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मस्ट, यू कैन से. ये देखिए, मैं सारे बच्चों को सूचित करना चाहूंगा, मैं जो पॉइंट लिख रहा हूँ ये बहुत शॉर्ट पॉइंट है. बुक के अंदर, नोट्स के अंदर आपको डिटेल में मिलते हैं. अगर आपको ये पॉइंट्स एग्जाम में लिखने हैं तो डिटेल में लिखने पड़ते हैं, लंबा लिखना पड़ता है. जैसे कि अभी इस सेंटेंस को बताओ. ये सेंटेंस अगर बुक के हिसाब से, नोट्स के हिसाब से आप बोर्ड में लिखना चाहते हो, कैसे लिखा जाएगा? The electrons in half-filled atomic orbitals of two overlapping atomic orbitals must have opposite spins. और overlapping atomic orbitals of two different atoms must have opposite spins of electrons. इस तरीके से वो सेंटेंस होना चाहिए रीअरेंज करके. मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो मुझे शायद सारे पॉइंट्स यहाँ पे बोर्ड के ऊपर लिखने हैं. तो पहला हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ half-filled atomic orbitals of two different atoms. दूसरा हो गया, ओवरलैपिंग atomic orbital must have opposite spin. इस एटम का ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल का ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अपोजिट स्पिन वाले, एक क्लॉकवाइज
तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तब जाके ओवरलैपिंग पॉसिबल। दोनों अगर क्लॉकवाइज होंगे, दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे, तो ओवरलैपिंग के चांसेस नहीं है। दिस इज व्हाट वी कैन से। सेकंड, थर्ड की बात करते हैं। आफ्टर ओवरलैपिंग ऑपोजिट स्पिन्स आर रिजॉल्व, opposite spins are resolved after overlapping. जब दो ऑर्बिटल के बीच में जब ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग के बाद अपोजिट स्पिन रिजॉल्व होते हैं, मतलब एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरीके से होगा जो हमने यहाँ पे देखा है इधर। अभी एक दिस इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग रिजॉल्व, एक क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। तो आफ्टर ओवरलैपिंग अपोजिट स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिजॉल्व होते हैं, मतलब एक क्लॉकवाइज होता है एक एंटी क्लॉकवाइज। भले ही रिएक्ट होने से पहले इसका भी इस तरीके से हो ऐसा चांसेस बहुत कम है, लेकिन मानो अगर ऐसा है तो भी ओवरलैपिंग के बाद ये उल्टा ही होता है, ऐसा इसका कहना है। एक्चुअली यहाँ पे वो क्लियर होता है कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल अपोजिट स्पिन के ही होने जरूरी है, मस्ट कंडीशंस है। और उसके बाद ये स्पिन्स आर रिजॉल्व, क्योंकि एक क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, +4 -4 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। उसी तरीके से अपोजिट स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिजॉल्व आफ्टर ओवरलैपिंग। फोर्थ, number of bonds is equal to number of half-filled atomic orbitals. Number of bonds is equal to half-filled atomic orbitals. इस एटम का half-filled atomic orbital इस एटम के half-filled atomic orbital ओवरलैप, तो दोनों के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये डिपेंड करता है कि इस एटम के अंदर कितने half-filled atomic orbitals, इस एटम के अंदर कितने half-filled atomic orbitals और कितने ओवरलैप होते हैं। So that's why number of bonds formed between any of the two atoms depends upon how many half-filled atomic orbitals are present and they overlap, उसके ऊपर डिपेंड करता है। So number of bond formed is always equal to the half-filled atomic orbitals present in two different atoms or two opposite atoms and how much they overlaps. Okay, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। That's called as fourth. Fifth, after overlapping electron density concentrate in the region between two nuclei. After overlapping के बाद after overlapping electron density concentrate in the region between the two nuclei, दो न्यूक्लियस के बीच में। अभी ये देखें, ये हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन, ओवरलैपिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के बीच में आ जाता है। जनरली हम ऐसे लिखते हैं, हम जानते हैं, बट ये इस रूल से आ चुका है कि ये हाइड्रोजन आइटम दोनों में जब बॉन्ड तैयार होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों के सेंटर में आ जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेट इन द रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है। ये उसके अंदर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिक्स्थ, after overlap orbital orient themselves in such a way so as to minimize repulsion between them, so forming a specific geometry. इसका मतलब क्या है? ये जो पॉइंट है ना, ये हमारे VSE पेयर थ्योरी के जैसा है। VSE पेयर थ्योरी में क्या कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के पेयर के बीच में रिपल्शन होता है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से दूर जाता है कि उससे ज्यादा वो दूर ही नहीं जा सकता, उससे ज्यादा रिपल्शन हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से है atomic orbitals of the atom after overlapping orient themselves in such a way that so as to minimize repulsion between them. एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है उनका, स्पेस में स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। स्पेस मतलब कैसा कि देखिए यहाँ पे हवा में कंसीडर करते हैं, अभी यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो ये पेन का ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन, मतलब इसे सेंटर पॉइंट कहेंगे तो इस डायरेक्शन में, शायद इस डायरेक्शन में हो सकता है, शायद इस डायरेक्शन में हो सकता है, शायद इस डायरेक्शन में हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। स्पेस में हम कंसीडर करना है ना। स्पेस में तो हमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस जरूरी है, जैसे कि हम ये करते हैं कि लाइक दिस, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर कहीं है, और ये 3D में देखेंगे तो XY Z भी होगा उस पर, तो उस तरीके से होता है। सो आफ्टर ओवरलैपिंग these orbitals orient themselves in such a way that so as to minimize repulsion between them, उनके बीच का रिपल्शन क्या होता है, मिनिमाइज होता है और मिनिमम होता है, और सो उस तरीके से वो चलता है। That is what we can say, the orbital orient themselves in such a way that so as to minimize repulsion between them.
इस तरीके से वो चलते हैं. This is one of the very important postulates of this valence bond theory. So hope everyone getting this postulates what we have seen here. Till that there is orbitals overlap in such a way that so as to minimize repulsion between them. उनके बीच का repulsion क्या होता है? एकदम minimum होता है. That is what we can see here. Direction. इसी पॉइंट को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑर्बिटल्स की अगर बात करते हैं तो जहां पे हम देखा कि s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, p ऑर्बिटल इज डम्बल है, और इसे px का क्यों कहा गया? बिकॉज़ ये x ऑर्बिट पे रहता है, ये p कोऑर्डिनेट पे रहता है, ये एक्सिस पे, ये z एक्सिस पे रहता है. सो लाइक दिस वन, तो हम इसे ऐसा कहते हैं, इसे x कहते हैं, इसे p कहते हैं और इसे हम लोग z कहते हैं. तो ये ऑर्बिटल x पे होता है, ये, सो दैट इज p. p डम्बल शेप होता है, x पे है, ये p ये y पे होता है, तो ये इसे y कहेंगे, और ये z पे होता है तो y कहेंगे. तो दिस इज कॉल्ड एज px, this is called as py, and this is called as pz. So the orbital, p orbital is dumbbell shape. Shapes of atomic orbital they can be atomic structure. p lie on x axis, so called as px. p lie on a z axis, called as pz. p lie on a y axis, called as py. Isn't it? अब ये px जब ओवरलैप होगा तो px के साथ होगा. It is having a direction on x. It has a orientation on x axis. This orbital has the orientation on z axis. This orbital has the orientation on y axis. So this has a directional character. It has a directional character. This is very important point. What he shows that over here. So that is what we can say regarding this one. Clear with this? And last, all attractive and repulsive forces are balanced after overlapping. 7. All forces are balanced after overlapping. When two atoms comes together, दो hydrogen atoms जब एक दूसरे के साथ आते हैं, when they approach each other, when they comes closer to each other, different forces interact between them. Different forces interact between them. उनके बीच में कई सारे अलग-अलग forces वहाँ पे interact होते हैं. और ये जो forces होते हैं उसमें कुछ repulsive forces होते हैं, कुछ attractive forces होते हैं. All these forces are neutralized. तब जाके bond तैयार होता है. अगर वो forces सारे balance नहीं होते, neutralize नहीं होते, तो bond forming की chances ज़्यादा है. Suppose इसके अंदर हो सकता है कि repulsive forces are greater than attractive forces. Bond forming की chances नहीं. Attractive forces are greater than repulsive forces. Bond forming की chances है. So in that sense, you can say when bond is formed, इसके अंदर कह सकते हैं कि attractive forces first exceed the repulsive forces. Then and then only bond is formed. All these are the postulates of valence bond theory. ये सारे valence bond theory के postulates हैं. तो once again एक बार वापस देखिए क्या क्या है. According to valence bond theory, covalent bond is formed by overlapping of half-filled atomic orbitals of two different atoms. Half-filled atomic orbitals of two different atoms. Then, overlapping atomic orbitals must have opposite spins of electrons. The overlapping atomic orbitals of two different atoms must have opposite spins of electrons. Then only overlapping occurs. Then, after overlapping, the opposite spins of the two atomic orbitals of two different atoms are neutralized or resolved. Opposite spins are resolved क्योंकि एक clockwise rotate हो रहा है तो एक anti clockwise rotate हो रहा है, तो these spins are resolved. इस तरीके से वो spins क्या होते हैं? Resolved होते हैं. Number of bonds formed, कितने bond तैयार होते हैं? तो number of bonds formed is always equal to number of half-filled atomic orbitals present in the valence shell. Valence shell में कितने number of unpaired electrons है या फिर कितने number of half-filled atomic orbitals? Half-filled atomic orbital is this, मतलब unpaired electrons. उसे unpaired electron भी कहा जाता है. और यही वैलेंसी की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने उसी के कारण एक वैलेंसी का डेफिनेशन भी दिया है. वैलेंसी इज कैपेसिटी टू फॉर्म अ बॉन्ड. और कौन सा भी एटम कितने बॉन्ड तैयार कर सकता है, तो यहाँ पे आता है कौन सा भी एटम उतने बॉन्ड तैयार कर सकता है जितने उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, जितने उसके पास हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है. तो जितने हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स उतने ही वो तैयार कर सकता है. दैट इज व्हाट वी कैन से नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एंड आफ्टर ओवरलैपिंग the density of the electron concentrate in the region between the two nuclei. Two nuclei के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेट होता है. बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद, ओवरलैपिंग के बाद दोनों न्यूक्लियाई के इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन सेंटर में आ जाते हैं. तो सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट द सेंटर. ये इसका कहना है. देन आफ्टर ओवरलैपिंग the hybridized orbitals orient themselves in such a way that so as to minimize the repulsion between them. मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप होने के बाद एक दूसरे से दूर जाते हैं in order to minimize repulsion between them. उनके इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर. जैसे कि यहाँ पे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है. अभी यहाँ पे देखते हैं कार्बन का 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. So there lies a repulsion between them. तो ओवरलैप के बाद तो पेयरिंग होता है तो रिपल्शन ज्यादा होता है.
सो ये जो ऑर्बिटल है एक दूसरे से स्पेस में इस तरीके से ओरिएंट करते हैं, इस तरीके से डायरेक्शन में चले जाते हैं टू हैव अ मिनिमम रिपल्शन बिटवीन, उससे ज्यादा रिपल्शन होता नहीं उनके बीच में, ऐसा हो जाता है। एंड देयर आर डिफरेंट इंटरैक्टिंग फोर्सेस व्हेन टू एटम अप्रोचेस ईच अदर। दो एटम जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं, डिफरेंट फोर्सेस इंटरैक्ट होते हैं, देयर आर सम रिपल्सिव फोर्सेस, देयर आर सम अट्रैक्टिव फोर्सेस, एंड ओवरऑल if the attractive forces are greater, then bond will be formed. If the repulsive forces are greater, bond won't form. That is also one of the important phenomena over here. And even after overlapping, they acquire the minimum energy state, and that's why I acquire the stability. That is also a very important possibility of this. Valence bond theory. Valence bond theory is put for the Hitler and London scientists. Hitler, VBT. Valence bond theory is put for the Hitler and London scientists, and that is called the valence bond theory. All these are the possibilities. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसी के ऊपर बेस्ट है। इसके अंदर के कीवर्ड्स है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इंपॉर्टेंट की, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट की, एंड सो ऑनवर्ड्स बाकी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके अंदर आते हैं। क्लियर विद दिस? सो दैट इज व्हाट वी हैव पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये पोस्टुलेट जो है ना, मैं बच्चों को चाहूंगा कि आपको लर्न करने पड़ते हैं, ये सिर्फ रीड करके अंडरस्टैंड तो हो सकते हैं, लेकिन कभी-कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो राइट करना है मतलब लर्न किए बिना राइट नहीं कर पाओगे आप। तो ये पोस्टुलेट्स लर्न करने हैं, अंडरस्टैंड भी करने हैं, और लर्निंग भी होना जरूरी है। क्लियर विद दिस? इसी के अंदर हिटलर एंड लंडन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दैट इज नेचर ऑफ इंटरैक्टिव फोर्सेस, जिसकी बात हमने यहाँ पे की थी, ऑल फोर्सेस व्हिच आर प्रेजेंट इन बिटवीन टू एटम अप्रोचेस ईच अदर। उसके बारे में उन्होंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया, एंड वो क्या है, कैसा है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू दैट। सो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाय हिटलर एंड लंडन। ये मैं पोस्टुलेट ऐसे रखता हूं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसी को ऐसा भी कहा जाता है नेचर ऑफ इंटरैक्टिंग फोर्सेस बिटवीन टू एटम्स। नेचर ऑफ इंटरैक्टिंग फोर्सेस, नेचर ऑफ इंटरैक्टिंग फोर्सेस बिटवीन टू एटम्स। दो एटम जब एक दूसरे के साथ अप्रोच होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो उनके बीच में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्सेस इंटरैक्ट होते हैं, वो कौन से, वो क्या है, यहाँ पे देखा जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो अब देखिएगा, सिंपल रिएक्शन, वन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद अनदर हाइड्रोजन टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल, और इस तरीके से होता है। बट इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हिटलर एंड लंडन ने बहुत केयरफुली स्टडी किया, उसका एनर्जी की बात स्टडी की, उसके बॉन्ड लेंथ की बात स्टडी की, उनके सब कुछ चीजों की उन्होंने स्टडी की। अकॉर्डिंग टू देम हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। डॉग्स डायग्राम देखेंगे तो दिस इज 1s ऑर्बिटल, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 1s ऑर्बिटल। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हैज दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। They studied the formation of hydrogen molecule graphically like this. Okay, so this is x-axis and this is, you can say, y-axis. And what they have done, so this axis is here, that is, you can say, like this, इस तरीके से, मतलब 3 coordinate geometry को स्टडी किया। तो उन्होंने क्या किया, सी फर्स्ट केस ऐसा किया, आपके बुक के अंदर एक ही केस है लेकिन दो केस किए। सो दिस इज, यू कैन से, केस फर्स्ट, एंड हियर यू कैन से केस सेकंड। फर्स्ट केस में क्या किया उन्होंने, हियर इज द वन हाइड्रोजन एटम हैविंग दिस spin of electron upward direction, this is another hydrogen atom having spin of electron same, that is in upward direction, that means clockwise. So these are the two hydrogen atoms. यहाँ पे x axis पे लिया है distance, x axis पे जो लिया है वो है distance between the two nuclei, and यहाँ पे जो लिया है this is nothing but the energy. तो यहाँ पे देखिए, शायद आपको इस तरीके से दिखाई नहीं देगा, जैसे कि एनर्जी। तो यहाँ पे y एक्सिस पे लिया है एनर्जी और x एक्सिस पे लिया है डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। ये जो दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, जहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन देखा हमने, तो उनका जो डिस्टेंस है, दो हाइड्रोजन एटम फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दो हाइड्रोजन एटम्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दे अप्रोचेस ईच अदर, धीरे धीरे वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, धीरे धीरे वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं। और वो देखा गया है कि व्हेन दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दे अप्रोचेस ईच अदर, तो व्हाट हैपेंस। तो ये दो पहले केस में क्या किया उन्होंने, दिस इज फर्स्ट हाइड्रोजन हैविंग स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज अनदर इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है।
और when they approaches each other, उनका जब डिस्टेंस कम किया गया तो देखा गया कि जैसा उनका डिस्टेंस कम हो जाता है उनका एनर्जी बढ़ता है, so this is the energy increases. So these are the two hydrogen atoms with parallel spins of electron. ये भी clockwise है, ये भी clockwise है, and when they are trying to bring closer, at that time energy suddenly increases. Energy increase हो रहा है because this is 0 point. Energy increase हो रहा है, और energy increase होगा तो bond form नहीं होगा. Energy increases and no bond is formed. No bond form. Bond form नहीं होता है, क्योंकि स्टेबल तभी बनेगा जब एनर्जी डिक्रीज होगा. यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबल बनने की कोई चांसेस नहीं. Another case में उन्होंने देखा कि this is hydrogen atom with parallel opposite spins and this is electron with downward spin. That means this is clockwise, this is anti-clockwise. Second case में they brought two hydrogen atoms together with opposite spins of electron. When two atoms, hydrogen atoms brought together, approaches each other with opposite spins of electron, energy start decreasing when they are brought closer. जैसे उन्हें क्लोज लाया गया तो एनर्जी उनका डिक्रीज होता है, लाइक इस तरीके से डिक्रीज होता है. दिस इज द डिस्टेंस वेयर 74 पिकोमीटर. देखिए यहाँ पे 74 पिकोमीटर डिस्टेंस इज देयर बिटवीन द टू एटम्स. 74 पिकोमीटर, ये दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है 74 पिकोमीटर यहाँ पर. सो लाइक दिस वन, यहाँ पे समथिंग क्लोज होगा, यहाँ पे और थोड़ा दूर होगा, दूर है थोड़ा नजदीक, और यहाँ पे एकदम क्लोज आता है. तो 74 पिकोमीटर डिस्टेंस पे उनके बीच में बॉन्ड तैयार होता है. जहां पे एनर्जी देखेंगे तो -436 किलोजूल एनर्जी, -436 किलोजूल एनर्जी रिलीज. और इससे ज्यादा क्लोज लाएंगे तो एनर्जी सडनली बढ़ता है, एंड बॉन्ड वोंट बी फॉर्म, हियर. यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, याद रखिए. यहां से आगे ये जो 74 पिकोमीटर डिस्टेंस, इससे ज्यादा क्लोज लाने की कोशिश करेंगे तो सडनली एनर्जी इंक्रीज होता है, और सडनली इंक्रीज होगा एनर्जी तो बॉन्ड वोंट बी फॉर्म. बॉन्ड फॉर्म होने के लिए मिनिमम एनर्जी इंटेंसिटी एंड ऑप्टिमम डिस्टेंस, एंड हाइड्रोजन के केस में दिस डिस्टेंस इज 74 पिकोमीटर. 74 पिकोमीटर इतना डिस्टेंस है एंड 436 किलोजूल एनर्जी इज रिलीज. तो हाइड्रोजन जब तैयार होता है तो 436 एनर्जी रिलीज होता है, किलोजूल. 436 किलोजूल एनर्जी इतना रिलीज होता है, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए दो चीजें जरूरी है. दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस 74 पिकोमीटर होता है एंड 436 किलोजूल एनर्जी रिलीज. अभी यहां से आगे देखिए, 74 पिकोमीटर से और क्लोज लाते हैं हम दोनों न्यूक्लियस को, और क्लोज लाते हैं तो सडनली एनर्जी बढ़ता है. सडन, ये अचानक ग्राफ में इंक्रीज है, सडन इंक्रीज है ना. जैसे कि हम लोग दोस्त को गले मिलते हैं, बहुत दिनों के बाद दोस्त को मिले तो गले मिलेंगे, लेकिन गले मिलने का तरीका होता है बहुत प्रेशर से एक दूसरे को दबाएंगे तो मर जाए, दम घुटने लगेगा. उसी तरीके से यहाँ पे होता है. दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को जब अप्रोच करते हैं, उनके बीच में जब 74 पिकोमीटर डिस्टेंस है दो न्यूक्लियस के बीच का, तब बॉन्ड तैयार होता है एंड 436 किलोजूल एनर्जी रिलीज होती है. उससे ज्यादा क्लोज लाने की कोशिश करेंगे तो एनर्जी सडनली बढ़ता है, डिक्रीज नहीं होता. एनर्जी सडनली बढ़ता है और बढ़ेगा तो बॉन्ड वोंट बी फॉर्म, बॉन्ड तैयार नहीं हो सकता. This is what happens here in this one. This case is being studied by this scientist. तो सवाल यह है कि एनर्जी क्यों बढ़ता है, एनर्जी क्यों कम होता है. ये दोनों चीजें इसके अंदर आती है कि एनर्जी क्यों बढ़ता है और एनर्जी क्यों कम होता है. These two things are very important. उसके अंदर ये है कि when two atoms approaches each other, इसके अंदर दो टाइप के फोर्स होते हैं. There are some repulsive forces, there are some attractive forces. इस केस में repulsive forces are greater than attractive forces. इस केस में दोनों के बीच में जो repulsive forces है, they are greater than attractive forces. और इस केस में repulsive forces are less than attractive force. इसके अंदर attractive force ज्यादा है up to this case, इस पॉइंट तक. इस पॉइंट से आगे वापस repulsive forces बढ़ते हैं and bond won't be formed. Here beyond this one, bond is formed because here repulsive forces are less than attractive forces. और वही हम देखेंगे तो कौन से किस तरीके से फोर्स होते हैं, अब ये देखिएगा. जस्ट एक सेकंड, एक मिनट ओनली, एक मिनट के अंदर देखिए कौन से फोर्सेस उधर दिखाई देते हैं एटम्स के अंदर, उस तरीके से. ओके, अभी मानो this is one of the hydrogen atom and this is another hydrogen atom like this. This has the electron over here, this has the electron like this. So this is nucleus. So there is a repulsion between nucleus because this has positive charge, this has also positive charge. There is a repulsion between nucleus. There is a repulsion between electrons. There is a repulsion between electrons. There is a repulsion between electrons. But this nucleus and this electron has the attraction. This nucleus and this electron has the attraction. This has the attraction. This has the attraction. So nucleus of one atom attracts electrons of another atom. Nucleus of other atom attracts electrons of first atom.
Like charges has the repulsion. Like charges has the repulsion. Electron repulsion. Nucleus repulsion. Electron repulsion. But electron nucleus has the attraction. So there are some attractive forces. There are some repulsive forces. When attractive forces are greater than repulsive forces, bond is formed. Or when repulsive forces are greater than attractive force, bond won't be formed. Bond kabhi tayar nahi hota hai. This is the case. Clear with this? Hope so everyone got this. This is the valence bond theory. Tomorrow we'll see the types of orbital overlap or types of bond. Till then, thank you much. See you tomorrow. Bye bye.